اس سے پہلے کہ ہم آج کے وائزن کو دعوت دیں اور آج کا خدا کا کلام ہم تک پہنچائیں، کلام خدا کے لیے پہلے زوردار تالیاں بجائیں گے۔ خوشی کے ساتھ خدا کے کلام کو یاد رکھیں تاکہ آج جب وہ خدا بات کرے تو زندگی میں آزاد ہو، اس کی رہائی پائے اور خداوند کا نام ہماری زندگی میں جلال پائے۔ خدا کی خادم کسی تعارف کے محتاج نہیں، وہ سعودی عرب میں وہ کافی دفعہ اپنی گواہی دے چکے ہیں، سعودی عرب میں خدا کی خدمت کرتے رہے ہیں اور غالباً عرصہ 4 سال سے وہ خدا کی خادم کے ساتھ ہماری ٹیم کے ساتھ مل کر خدا کے نام کو جلال دے رہے ہیں۔ آپ کی زوردار تالیوں میں خدا کے خادم پاسٹر پرویز آئیں گے اور خدا کا کلام ہم تک پہنچائیں گے۔ زوردار تالیاں خدا کے کلام کا سے کریں۔ جگہ تو بھی چاہیے، چلو تم بیٹھو پیچھے کیا نا۔ خدا یسوع مسیح کے خوبصورت جلالی و برکت الفضل اور محتبر نام میں جو سب ناموں سے اعلیٰ اور افضل ہے اور جس نام کے آگے ہر ایک گھٹنا جھکتا ہے، اس نام میں آپ کی سلامتی ہو۔ آپ کی بھی سلام۔ ہاللویا، زور سے کہیں ہاللویا ہاللویا ہاللویا۔ ہاللویا۔ خدا کے کلام کے لیے تالیاں بجائیں گے۔ دو لائنیں ہیں آپ کے لیے، چھوٹی سی ہیں، غور سے سنیے۔ خدا کا خادم اس طرح سے 2 لائنوں میں خدا کی اور یسوع نام کی قدرت کو بیان کرتا ہے۔ وہ لکھتا ہے، جب کچھ نہ تھا تب بھی یسوع نام تھا۔ غور سے سنیں جی، جب کچھ نہ تھا تب بھی یسوع نام تھا، اور جب کچھ نہ ہوگا تب بھی یسوع نام ہوگا۔ ہاللویا آمین۔ جب کچھ نہ ہوگا تب بھی یسوع، ہاللویا۔ میں نے خدا کے خادموں سے سیکھ رکھا ہے، میں دنیا میں جتنے بھی خادمین ہیں اور آپ جو سب بیٹھے ہوئے ہیں خدا کی حضوری میں، آپ سب سے بھی چھوٹا سا ایک اسٹوڈنٹ ہوں، طالب علم ہوں، ابھی سیکھ رہا ہوں میں خدا کے خادموں سے۔ جو میری ٹیم بیٹھی میں ان سے بھی سیکھتا ہوں، جو میری بہنیں بیٹیاں ہیں میں ان سے بھی سیکھتا ہوں۔ تو یہ میں خادموں سے جب سیکھتا ہوں تو اسی کو آگے لے کر چلتا ہوں۔ لفظ خدا جو ہے، میں نے خدا کے خادموں سے سیکھا، لفظ خدا جو ہے وہ باپ کو ظاہر کرتا ہے، خدا باپ کو ظاہر کرتا ہے، اور لفظ خداوند جو ہے وہ یسوع مسیح کو ظاہر کرتا ہے، بیٹے کو ظاہر کرتا ہے۔ اسی لیے کلام خداوندی میں غور سے سنیں، یہ فگر ہے، کمپیوٹر کی فگر ہے، آگے پیچھے ہو سکتے ہیں، میں نے بھی خدا کے خادموں سے سیکھے ہیں۔ کمپیوٹر کے جو فگر ہے، لفظ خدا جو ہے 3358 مرتبہ آیا ہے، 3358 مرتبہ لفظ خدا ہے، کلام خداوندی ہے، اور جو باپ کو ظاہر کرتا ہے۔ لیکن جو یسوع مسیح ناصری کو ظاہر کرتا ہے، لفظ خداوند 7736 مرتبہ آیا ہے، 7736 مرتبہ میرے اور آپ کے یسوع کا نام ہے۔ ہاللویا ہاللویا۔ دیکھیں لفظ جو ہے آگے پیچھے ہو سکتے ہیں، کمپیوٹر کے لفظ ہے، کمپیوٹر بھی دھوکہ دے سکتا ہے، لیکن میرے خدا کا نام جو ہے وہ ہمیں دھوکہ نہیں دے سکتا، وہ اول اور آخر ہے اور سدا تک قائم رہنے والا یسوع نام ہے۔ ہاللویا ہاللویا۔ لفظ بہت زیادہ ہے، اگر ہم پرانے عہد نامے میں لفظوں کی تعداد دیکھیں تو 5,92,439 لفظ ہے پرانے عہد نامے میں، اور نئے عہد نامے میں 1,81,253 الفاظ ہیں۔ تو اتنے الفاظوں میں میں سمجھتا کہ کمپیوٹر بھی فیل ہو جاتا ہے، اتنے لفظ تک خدا کے۔ ہاللویا۔ آئے نکالے میرے ساتھ کلام خداوندی میں سے آج کا ٹاپک جو ہے وہ یسوع نام ہے، کہ میری اور آپ کی زندگی میں یسوع نام کیسے کام کرتا ہے، اور پہلے کیسے یسوع نام خدا کے لوگوں کی زندگی میں کام کرتا تھا۔ نکالے میرے ساتھ جلدی سے کلام خداوندی میں یوحنا رسول کی معرفت لکھا گیا انجیلی بیان ہے، اس کا 16واں باب ہے اور اس کی 24ویں آیت، کوئی پڑھنے میں رہنمائی کرے گا۔ خدا کے
जिंदा कलाम में लिखा है, अब तक तुमने मेरे नाम से कुछ नहीं मांगा, मांगो तो पाओगे ताकि तुम्हारी खुशी पूरी हो जाए। पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सबों के लिए बायस बरकत। हालेलुया। हालेलुया। कलाम खुदावंदी में खुदा की जुबान मुबारक से निकले हुए ये अल्फाज हैं जो हमारी बेटी ने हमारे लिए तिलावत की है। अब तक तुमने मेरे नाम से कुछ नहीं मांगा, मांगो तो पाओगे ताकि तुम्हारी खुशी पूरी हो जाए। हालेलुया। ये उस वक्त खुदावंद यीशु मसीह ने अल्फाज कहे जब वो सलीब पर मेरे और आपके लिए कुर्बान होने के लिए तैयार हो रहे थे और अपनी जान को मेरे और आपके लिए फिदिया के तौर पर देने के लिए तैयार हो रहे थे। उस वक्त खुदा ने अपने शिगिर्दों से ये अल्फाज कहे कि अब तक तुमने मेरे नाम से कुछ नहीं मांगा, मांगो तो पाओगे तुम्हारी खुशी, ताकि तुम्हारी खुशी पूरी हो जाए। खुदावंद यीशु मसीह नासरी अपने शिगिर्दों से कलाम करते हैं, उनकी तरबियत करते हुए, उनको नसीहत करते हुए और उनको जो है अपने मुंह की बातें सिखाते हुए ये अल्फाज खुदावंद यीशु मसीह ने अदा किए जब वो जा रहे थे। तो कलाम खुदावंदी में लिखा है कि खुदावंद ने कहा कि थोड़ी देर में तुम मुझे न देखोगे और फिर थोड़ी देर में तुम मुझे देख लोगे। बस उसके बाद शिगिर्दों ने आपस में कहा कि ये क्या बात है जो ये कहता है कि तुम मुझे थोड़ी देर में ना देखोगे और फिर थोड़ी देर के बाद देख लोगे। असल हकीकत ये है कि खुदावंद यीशु मसीह उनसे ये कह रहे थे कि मैं अपने लोगों के लिए, अपनी कौम के लिए, अपने बच्चों के लिए कुर्बान होने के लिए जा रहा हूँ। सलीबी मौत जो है वो मेरे लिए है, मैं मरने के लिए जा रहा हूँ इनके लिए। फिर मैं जब मर जाऊंगा, सलीब पर दुख डालूंगा, दफन हो जाऊंगा और तीसरे रोज मुर्दों में से जी उठूंगा, तब तुम्हारी खुशी की कोई इंतहा ना होगी। हालेलुया। यहाँ पर तो ये कह रहे थे कि थोड़ी देर में तुम मुझे ना देखोगे, लेकिन उसके बाद थोड़ी देर में क्या होगा, जब मैं मुर्दों में से जी उठूंगा तब मुझे तुम क्या करोगे, देख लोगे। और लिखा है कलाम खुदावंदी में कि मैं तुमसे सच कहता हूँ, तुम रोगे और मातम करोगे और दुनिया खुश होगी। तुम गमगीन तो होगे लेकिन तुम्हारा गम ही खुशी बन जाएगा। जब मैं मुर्दों में से मौत और कब्र पर फतह पाकर तीसरे रोज मुर्दों में से जी उठूंगा तो तुम्हारा गम ही खुशी बन जाएगा। हालेलुया। तुम्हारा गम ही खुशी। एक छोटी सी मिसाल यीशु मसीह नासरी ने अपनी जुबान मुबारक से यहाँ पर कही है कि जब औरत जन्मने लगती है तो गमगीन होती है, इसलिए कि दुख की घड़ी आन पहुंची। लेकिन जब बच्चा पैदा हो चुका है तो इससे खुशी की ता नहीं रहती कि एक आदमी जमीन पर पैदा हुआ, इसलिए वो अपने दर्द को क्या होता है भूल जाती है। इसलिए जब मैं मसरूफ हो जाऊंगा, मर जाऊंगा, दफन, तुम गमगीन होगे, तुम दुखी होगे, तुम परेशान होगे, लेकिन मैं मौत पर जब फतह पा लूंगा तो तीसरे रोज मुर्दों में से जी उठूंगा, तब तुम्हारी खुशी कोई इंतहा आमीन। ना होगी। हालेलुया। हालेलुया। इसलिए खुदावंद यीशु मसीह नासरी, अगर हम अपना 23वीं आयत पढ़े, उस दिन तुम मुझसे कुछ ना पूछोगे, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि अगर बाप से कुछ मांगोगे तो वो मेरे नाम से तुमको देगा। अब तक तुमने मेरे नाम से कुछ मैं चाहता हूँ, लेकिन ये नाम तुम्हारी जिंदगी में रहे। हालेलुया। ये सिखाने की यहाँ पर खुदावंद यीशु मसीह नासरी ने पूरी कोशिश की अपने शागिर्दों को कि जब मैं जाता हूँ तो ये नाम तुम्हारी जिंदगी में रहे। हालेलुया। हालेलुया। और अगर हम यूहन्ना रसूल की मार्फत लिखा गया अंजीली बयान उसका 15वां बाब उसकी 16वीं आयत में जब हम देखें तो लिखा है कलाम खुदावंदी में, और खुदावंद यीशु मसीह नासरी ने अपनी जुबान मुबारक से फरमाया कि तुमने मुझे नहीं चुना। हालेलुया। तुमने मुझे नहीं चुना बल्कि मैंने तुम्हें चुन लिया, तुमको मुकर्रर किया कि जाकर फल लाओ, तुम्हारा फल कायम रहे, ताकि मेरे नाम से जो कुछ तुम बाप से मांगो वो तुमको मिल जाए। हालेलुया। तो हम उन्होंने चुने आज ਅਸੀਂ ਵੀ खुदा ने बल्कि मैं इतने यह कहूँगा कि खुदा ने सानू चुन लिया।
हालेलुया अपनी खिदमत वास्ते अपनी सताइश वास्ते अपनी हिम्मत वास्ते अपनी इबादत वास्ते खुदा ने सानू चुनिया ਅਸੀਂ खुदा ਨੂੰ नहीं चुनिया वो अपनी ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਾਬੂਦਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖੂਨ ਮੰਗਦਾ ਕੁਰਬਾਨੀ ਉਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਆਪਣਾ ਖੂਨ ਤੇ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਚੁਣਿਆ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਚੁਣਿਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ तुमने मुझे नहीं चुना बल्कि मैंने तुम्हें चुन लिया ताकि और तुमको मुकर्रर किया कि जाकर फल लाओ तुम्हारा फल कायम रहे। रात को जब मैं इस कलाम की स्टडी कर रहा था उसका हवाला मेरी नज़र से गुजरा वो मैं आपकी खिदमत में बयान करता चलूँगा फिर आहिस्ता आहिस्ता मैं आगे कलाम में बढ़ता जाऊँगा। बड़ा अच्छा हवाला जब मैं रात को यीशु नाम को लेकर इस टॉपिक को लेकर मैं था तो ये हवाला मेरी नज़रों के सामने से गुजरा। खरूज 23वां बाब है उसकी 20वीं और 21वीं आयत निकाले मेरे साथ पढ़ लेंगे तो अच्छा होगा कि यीशु नाम कैसे आज मेरी और आपकी जिंदगी में देखें लिखा है कि अब तक तुमने मेरे नाम से कुछ नहीं मांगा। उस वक्त खुदावंद ने ये कलाम अपने शागिर्दों के साथ किया अपने लोगों के साथ किया अपने चाहने वालों के साथ किया लेकिन आज खुदा का कलाम जो है बैठी हुई हर एक जिंदगी के लिए है कि अब तक तुमने मेरे नाम से कुछ नहीं मांगा मांगो तो पाओगे ताकि तुम्हारी खुशी पूरी हो जाए। अब तक हालेलुया लिखा है कलाम खुदावंद ने देख यहाँ पर खुदा अपनी कौम को अपने आयत सिखाते हुए अपने तरतीब सिखाते हुए अपने लोगों को मूसा के वसीले से कलाम कर रहे हैं। लिखा है देख मैं एक फरिश्ता तेरे आगे आगे देखता हूँ कि रास्ता में तेरा निगाहबान हो और तुझे उस जगह पहुंचा दे जिसे मैंने तैयार किया है। लिखा है कलाम खुदावंदी में अगली आयत में 21वीं आयत में गौर से सुने इस आयत को तुम उसके आगे होशियार रहना जो फरिश्ता मैंने तुम्हारे साथ भेजा है तुम्हारे आगे के भेजता हूँ। लिखा कलाम खुदावंदी में कि तुम उसके आगे होशियार रहना और उसकी बात मानना उसे नाराज ना करना क्योंकि वो तुम्हारी खता नहीं बख्शेगा इसलिए कि मेरा नाम उसमें रहता है। हालेलुया मेरा नाम खुदा यहाँ अपने फरिश्तों के लिए कह रहा है कि मेरा नाम उसमें रहता है और वो मेरे नाम की गैरत रखता है मेरे नाम की इज्जत रखता है इसलिए वो तुम्हारी खता हरगिज़ नहीं बख्शेगा उसे नाराज ना करना। आज यीशु नाम हर एक जिंदगी में नहीं जीना ये मैं बाबा से बुलंद कहूंगा लेकिन जितनों की जिंदगी में यीशु नाम है उन्हें जिंदगी में कभी किसी चीज की कोई देखकर मैं एक छोटी सी मिसाल दूंगा कि अंग्रेजों ने गाड़ी से लेकर जहाज और सैटेलाइट तक बना डाला मगर उनके गले में मैंने आज तक तवीज नहीं देखा। यीशु नाम की कुदरत को बयान कर रहा हूँ उनको सैटेलाइट बना डाला जहाज बना दुनिया की हर एक चीज इसराइल को देख ले आज नंबर 1 है कि वो हर एक चीज बना डाली है उन्होंने लेकिन आज उनके गलों में तावीज नहीं देखा और उन्हें जेल भी नहीं चिपटते उन्हें जिन भी नहीं चिपटते और उन्हें नजरें बद भी नहीं लगती इसलिए कि यीशु नाम उनकी जिंदगी और उनके अंदर होता है। हालेलुया आज जितने भी ताकत तवीज है वो हमारी जिंदगियों में है हमने अपने गलों में ताकत तवीज पाए हुए होते हैं लेकिन उनकी जिंदगियों में आज तक मैंने धागा और तवीज नहीं देखा इसलिए कि उनके गले में यीशु मसीह नासरी की सलीब लटकी थी। यीशु नाम उनकी जिंदगी में होता है इसलिए आज वो अव्वल है। हालेलुया हालेलुया और अव्वल रहेंगे जिस कौम को खुदा ने बरकत दी उन्हें कौन मिटा सकता है। हालेलुया इसलिए वो उन्होंने नजरे बात भी नहीं चला दी भाई कहते कोई चंगा सूट पा लेना भाई कैसा चंगा सूट पा लेना लेकिन यार कैसे कितने नजर वही की ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਯਿਸੂ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੇ ਯਿਸੂ ਨਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਜ਼ਰ ਲੱਗ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਗਲੇ 'ਚ ਧਾਗੇ ਤਵੀਕ ਲਟਕਾਣੇ ਜੋ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਲਟਕਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲਟਕਾਣਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ 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 खुदा के खादम मतलब पहले वो मेरी तरफ नहायती बुज़दिल थे लेकिन जब खुदा का खास रूह ने मिला तो बड़ी दलेरी के साथ खुदा के नाम को इस तरह बयान करते हैं और लिखते हैं अमाल 4 बाब उसकी 12वीं आयत में लिखा है और किसी दूसरे के वसीला से निजात नहीं क्योंकि आसमान के तले आदमियों को कोई दूसरा नाम नहीं बख्शा गया जिसके वसीले से निजात और यीशु नाम का मतलब क्या है कौन बताएगा। हालेलुया हालेलुया तालियां से निजात के लिए
काम करता है तो वो कहता है किसी और दूसरे के वसीले निजात नहीं, क्योंकि आसमान के तले आदमियों को कोई दूसरा नाम और बख्शा ही नहीं गया जिसके वसीले से हम निजात पा सके। क्यों? क्योंकि ये नाम जमीनी नहीं मेरे भाई और बहनों, ये नाम आसमान से उतरा हुआ है। दो नाम उतरे, मेरी सलाह कीजिए अगर मैं गलत हूँ, दो नाम उतरे हैं। देखिए यूहन्ना हनोका नाम, हाँ सॉरी पुराने नाम की बात कर रहा हूँ। दो नाम यूहन्ना और यीशु मसीह नासरी का, हालेलुया। क्योंकि ये नाम जमीनी नहीं, ये नाम जमीनी नहीं, ये नाम आसमानी है। और लिखा कलाम खुदावंदी में कि जब रूह कुदस ने मरियम पर साया किया तो यूसुफ जब उसे छोड़ देना चाहता था तो खुदा के फरिश्ता ने उससे कलाम किया कि तो अपनी बीवी को अपने घर ले आने से ना डर, क्योंकि जो कुछ उसके पेट में है वो रूह कुदस की कुदरत में है, उसके बेटा होगा तो उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वही अपने लोगों को उनके गुनाहों से निजात देगा। हालेलुया, यीशु नाम में निजात है। हालेलुया, यीशु नाम में रहाई है। सब नाम है जी दुनिया में रखे हुए, क्यों सर? सारे नाम हैं, फिलिप्पस है, पतरस है, पौलुस है, सिलास है, हर एक नाम है, लेकिन आज तक मैंने यीशु नाम नहीं सुना जी। हालेलुया, सुना है कि किसी ने अगर सुना तो अपना हाथ मेरी सलाह कीजिए। मैंने नहीं दी अपने, मैं अपनी जाती बात कर रहा हूँ। आज तक किसी ने यीशु नाम नहीं रखा। हालेलुया, क्योंकि वो नाम बड़ा पाक और कुदरत वाला है और उस नाम के अंदर निजात है। इसलिए मैं कहूँगा कि किसी और को ये नाम रखने की जरूरत भी नहीं, क्योंकि आसमान के तले आदमियों को सिर्फ एक ही नाम बख्शा गया है और वो नाम है यीशु। उसी नाम की कुदरत देखेंगे कि जब शिगिर्दों ने इस नाम को अपनी जिंदगी में लिया तो खुदा ने इस नाम के वसीले से उनकी जिंदगी में अजीब काम किए। हालेलुया, अजीब काम किए इस नाम के वसीले से खुदा ने। जब शिगिर्दों ने, खुदा के लोगों ने, जो लोग उस वक्त वहां पर मौजूद थे, जब इस नाम को अपनी जिंदगी में ले लिया, जब यीशु मसीह नासरी मसलूब हुए, दफन हुए, तीसरे रोज मुर्दों में से जी उठे, फिर आसमान चले गए, तो खुदावंद के लोगों ने और खुदा के शागिर्दों ने, खुदा के खादमों ने जब ये नाम अपनी जिंदगी में लिया तो खुदा ने इस नाम के वसीले से अपने लोगों की जिंदगी में अजीब काम किए। हालेलुया, तीन काम मैं यहाँ पर खुदा यीशु मसीह के बयान करना चाहूंगा। छोटे छोटे हैं, वैसे तो पूरा कलाम मुकद्दस ही भरा हुआ है खुदा के नाम के वसीले से जो काम हुए, लेकिन तीन, पहला एक बुजुर्ग गिरफ्तार और दूसरा शिफा और तीसरा यीशु नाम में फतह कैसे। तीनों नामों को गौर से सुनिए। थुआतीरा की एक खुदा परस्त औरत है, क्रिम्स बेचने वाली लुदिया नाम है उसका। वो खुदा की बातों को सुनती थी और खुदा ने उसके दिल को खोला के पौलुस रसूल की बातों पर तवज्जो करे। और जब उसने पौलुस रसूल की बातों पर तवज्जो की, खुदा के कलाम पर तवज्जो की, तो उसने अपने घराने समेत अपने खानदान के साथ मिल करके यीशु मसीह नासरी के नाम का क्या लिया, बपतिस्मा लिया। उन्होंने उस औरत ने खुदा के खादमों से कहा कि अगर तुम मुझे खुदा की बंदी समझते हो तो फिर मुझे ईमानदार बंदी समझते हो, फिर मेरे कहने पर कुछ दिन हमारे पास रहो। तो वो उसने लिहाजा कलाम खुदावंदी में लिखा है और खुदा के खादम बयान कर रहे हैं इस चीज को कि उसने हमें क्या किया, मजबूर किया। लिखा है कलाम खुदावंदी में, ये हवाला भी है, अगर आप पढ़ना चाहेंगे तो पढ़ लीजिए, ये हवाला है अमालसों में बाद में, और में ऐसे ही हवाला आपको मिल जाएगा। और जब खुदा के खादिम जो है वो दुआ के लिए दुआ की जगह जा रहे थे, जब इस औरत के यहाँ वो ठहरे हुए हैं तो उन्होंने सोचा कि हम किसी दूसरी जगह पर जाकर दुआ के लिए दुआ में ठहरते हैं। जब वो दुआ करने के लिए उस जगह पर जा रहे थे तो एक लौंडी उन्हें मिलती है जी, यहाँ पर एक लौंडी उन्हें मिलती है यहाँ पर, जिसमें गैबदान रूह थी। और वो उस गैबदान रूह जो है वो अपने मालकों के लिए बहुत कुछ गैब वही से कमाती थी, अपने मालकों को बड़ा कुछ कमाकर वो देती थी। हालेलुया। और लिखा है कलाम खुदावंदी में कि जब खुदा के खादिम कहते हैं कि जब हम दुआ की जगह जा रहे थे तो वो हमारे पीछे आकर
और चिल्लाती और खुदा के खादमों के पीछे शोर मचाती, शोर और गुल करती कि ये लोग खुदा के बंदे हैं जो तुम्हें क्या करते हैं, खुदा की राह बताते हैं। लिखा कलाम खुदावंदी में कि जब ये रोज चिल्लाती थी तो पौलुस इसके चिल्लाने से और तंग आ गया, और एक दिन जब पौलुस और सिलास दुआ करने की जगह पर जा रहे थे तो ये उसी तरह इसने चिल्लाना शुरू किया, और खुदा का कदम लिखा हुआ कलाम खुदावंदी में कि बहुत सख्त रंजीदा हुआ, और उसने जब ये चिल्ला रही थी मुड़कर इस रूह को डांटा कि मैं तुझे यीशु मसीह नासरी के नाम से हुक्म देता हूँ, इस रोटी से निकल जा। जब यीशु मसीह नासरी का नाम लिया गया तो वो बंधु उसी टाइम उस औरत से निकल गए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ये है यीशु नाम की कुदरत। एक ही नाम लिया, एक ही बार कलाम किया खुदा के खातम पौलुस रसूल ने, रसूल आज़म ने, कि मैं तुझे यीशु मसीह नासरी के नाम से हुक्म देता हूँ, इसमें से निकल जा। बदरू ठहरी नहीं, रूह ठहरी नहीं। हालेलुया, ये है यीशु नाम की कुदरत। जब खुदा के खादमों ने इसे अपने अंदर ले लिया, खुदा के आसमान पर चले जाने के बाद जब इसे अपने अंदर लिया, इसे अपने, तो यीशु नाम की कुदरत उनकी जिंदगी में क्या करती थी, काम करती थी। हालेलुया, आज अपनी जिंदगियों पर गौर करेंगे, क्या ये नाम हमारी जिंदगी में काम कर रहा है आज? हालेलुया, कितनों का ईमान है कर रहा है? कितनों का ईमान? हाथ हिलाए। मेरे लिए नहीं, मेरे लिए नहीं, जिंदा खुदा के लिए। हालेलुया, जिंदा खुदा के लिए, जो खुदा का नाम आज भी हमारी जिंदगी में खुदा के शकीदों की तरह काम करता है। उस नाम के लिए जोरदार तालियां चाहिए। पतरस और यूहन्ना, पौलुस और सिलास के बारे में मैंने बताया। पतरस और यूहन्ना तीसरे पहर दुआ करने के लिए हैकल में जा रहे थे, और लिखा कलाम खुदावंदी में कि लोग एक जन्म के लंगड़े को हैकल में ला रहे थे, जिसको हर रोज एक दरवाजे पर जो खूबसूरत कहलाता है उसे बिठा देते थे ताकि आने जाने वालों के से क्या करे, आने और जाने वालों से क्या करे, भीख मांगे। और उसे हर रोज जो है वो बिठा देते थे। और जब पतरस और यूहन्ना हैकल में दाखिल हो रहे थे तो उस जन्म के लंगड़े ने क्या कहा, उनसे भीख मांगी। उनसे क्या किया, भीख मांगी। और जब खुदा के खादम पतरस ने कहा उससे कि हमारी तरफ देख, हमारी तरफ देख, खुदा का खादम यहाँ पर कुछ और चाहता था, लेकिन जो जन्म का लंगड़ा है जब उसने देखा तो उसकी नजरों में ऐसी हसरत थी, उसके दिल में ऐसी हसरत थी कि मुझे कुछ इनसे मिले, क्योंकि वो नहीं जानता, वो इस हकीकत को नहीं जानता था कि ये खुदा के खादम है या मुझे शिफा दे सकते हैं, या वो इस चीज से बेखबर था। उसे एक ही फिक्र थी कि इनसे कुछ मिलने की उम्मीद मुझे है। इसलिए खुदा के खादम ने तो किसी और तरह से कहा, या मैं ये कहूँगा कि खुदा के खादम ने, खुदा के खादम जो है उनके दिल में तरस भरा हुआ था, और उसने कहा कि हमारी तरफ क्या कर देख, हमारी तरफ देख। खुदा के खादम जो है तरस से भरे हुए हैं, और खुदा के खादम में मैं ये समझता हूँ कि ये बात भी खुदा यीशु मसीह नासरी ने अब खुदा के खादम के दिल में डाली। हालेलुया, तो खुदा के खादम ने कहा कि हमारी तरफ देख। तो जब वो उनकी तरफ देखने लगा तो उसकी नजरों में सिर्फ यही था कि आज मुझे इनसे कुछ मिलेगा। लेकिन यहाँ पर पतरस रसूल जो है वो कहता है कि देख, जब उसने उनकी तरफ देखा कि मुझे कुछ मिलेगा तो पतरस ने यहाँ पर चंद अल्फाज कहे। हालेलुया, यीशु मसीह नासरी के नाम में खुदा के खादम ने यहाँ पर अपनी जुबान मुबारक से निकाला कि चांदी और सोना तो मेरे पास है नहीं, लेकिन जो कुछ मेरे पास है वो आज तुझे दिया देता हूँ। यीशु मसीह नासरी के नाम में उतर चल पे बोलेगा तो चल करेगा ना, उस वक्त यीशु नाम में चलता चलता हुआ खुदा की हकल में वो कंप्लीट होता हुआ खुदा के शरीर के साथ हकल लग गया। और जब लोगों ने उसे देखा कि ये कुछ, एक गल याद रखना कि हर तरह का लंगड़ा, हर तरह दी आंखां ठीक हो जाएंगे, लेकिन जेरा मां दे पेट च मफलूज पैदा होया है उसका कोई इलाज नहीं। हालेलुया,
है जी सर? उसका कोई इलाज नहीं। जन्म करता था, उनको खुदा ने आंखें उसकी आंखों में आई बात डाले खुदा ने, तो वो भी डॉक्टरों के पास इलाज नहीं। ये जन्म का लगड़ा जो है माँ के पेट से पैदा हुआ है, इसका कोई इलाज नहीं। लेकिन यीशु मसीह नासरी के नाम में इतनी कुदरत, इतना जलाल है कि वो जन्म का लगड़ा भी उड़ता हुआ खुदा की हैकल में दाखिल होता है। हालेलुया, हालेलुया। शागिर्दों ने जब इस नाम को अपनी जिंदगी में लिया है, तो खुदा ने उनकी जिंदगी में अजीब काम किए। हालेलुया। खुदा ने क्या किया? अपने शागिर्दों की जिंदगी में क्या किया? अजीब काम किए। बुजुर्ग गिरफ्तार खुदा के नाम से भागते हैं। शिफा यीशु मसीह नासरी के नाम से जारी होती है। पता कैसे मिलती है? कौन बताएगा? सुनीता आप बताएं। हालेलुया। यीशु नाम में पता है। ध्यान करता हूँ थोड़ा सा गौर से सुनिए। खुदा का कलाम है। मैंने रात को टॉपिक को छोड़ दिया था, लेकिन खुदा जो है, देखें इंसान के पास की बात नहीं। खुदा के खादम यहाँ पर बैठे हुए हैं, ये इंसान के पास की बात नहीं होती। खुदा के खादम हमारे उस्ताद जी पास्टर विलियम सागर साहब, खुदा उनको हयाती बख्शे, उनकी उम्र दराज करे। अभी सुबह आते मेरी उनके साथ बात हुई। ये इंसान के पास की बात नहीं, ये खुदा के खादमों के पास की बात नहीं कि वो क्या बयान करने वाला है। ये खुदा जो है अपने खादमों को अपने जलाल के लिए खुद ही उनके दिल में डाल देता है कि क्या करें। जो खुदा के खादम हैं वो चाहते हैं कि आपके लिए, आप जो खुदा की भेड़े हैं, आपके लिए अच्छे से अच्छा तैयार करें, आपके लिए अच्छे से अच्छा जो उन्हें अल्फाज मिले, जो खुदा का कलाम मिले, लेकिन मर्जी खुदा की पूरी। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। फिलिस्तियों के लश्कर से एक पहलवान उठा, क्या नाम था उसका? हालेलुया, जाति जूलियत। हालेलुया। वो लश्कर से उठा, उसने पुकार कर कहा, इस्राएली फौजों की उसने यहाँ पर फजीयत की है, और उसने पुकार कर कहा कि अपने जब जंग में सफ आराई हुई, एक दूसरे के सामने इस्राएली फौजी और फलस्ती जो है वो जमा हुए, तो उसने ललकारा और उसने पुकार कर कहा इस्राएली फौजियों से कि कोई शख्स तुम मेरे साथ निकालो ताकि वो मेरे साथ लड़ सके। अगर वो मुझे मार दे तो हम तुम्हारी गुलामी करेंगे, पर अगर मैंने उसे कत्ल कर दिया तो तुम हमारे गुलाम हो देना। पौने 10 फीट का जवान जाति जूलियत जो बचपन से ही अब जंगी मर्द है, वो जब ललकारता है तो लिखा कलाम खुदावंद में कि जब साउल और उसके खादमों ने ये बातें, जो लश्कर का पहलवान जाति जूलियत है उसने कही और इस्राएली फौजों की जब उसने फजीयत की, तो लिखा कलाम खुदावंदी में कि इस्राएली फौजी और साउल के जितने भी खादम थे वो डर के भागे और हरासा हुए। हालेलुया। वो डर कर भागे और हरासा हुए, क्योंकि पौने 10 फीट का जवान है। और उसने ललकार कर कहा कि कोई शख्स अपनी फौजों में से निकालो ताकि वो मेरे साथ आकर लड़ सके। अगर मैं कत्ल कर लिया तो तुहानू गुलामी करनी पेगी, जे अगर उन्हें मनु कत्ल कर लिया तो फिर असीं जिहड़े ना तुहाडे गुलाम हो जाओ। लेकिन डर के मारे, लिखा कलाम है खुदावंदी में इसी तरह कि डर के मारे कोई शख्स उसके नजदीक नहीं जाता था। फिर दाऊद, गौर से सुनने दी बड़ी बाबरकत कलाम है ये। फिर दाऊद जब वहां पर गया, उसके 3 बड़े भाई उस जंग में शरीक थे, तो खुदा के बंदा यसी ने अपने बेटे दाऊद से कहा कि जाओ अपने भाइयों की खैरियत मालूम करके और कुछ खाना ले जाए। और जब वो अपने भाइयों की खैरियत मालूम करने के लिए 3 बेटे थे उसके, जैसे कि कुल टोटल बेटे 8 थे, लेकिन 3 बड़े बेटे अलियाब, अबिनदाब और समा जो है वो जंग में उसमें शरीक थे। और जब दाऊद अपने भाइयों की खैरियत मालूम कर रहा था, अपने भाइयों को खाना दे रहा था, जंग के बारे में पूछ रहा था, तो उसी वक्त वो फलस्ती जो है, वो जाति जूलियत जो पहलवान है, वो निकला और उसने वही बातें की कि कोई मर्द इस्राएल को तुम निकालो मेरे सामने ताकि वो मेरे साथ झगड़ा कर सके, मेरे साथ लड़ाई कर सके। लेकिन लिखा कलाम खुदावंद में कि जब वो बातें करता था, जब वो निकला तो इस्राएली मर्द वहां से भागे डर के मारे। तो दाऊद ने देखा, दाऊद ने सुना उसको, और दाऊद ने लोगों से कहा कि ये क्या, ये कौन है? तो इस्राएली मर्दों ने दाऊद से कहा कि
शख्स इसे मार देगा, इसे मार कर खत्म कर देगा, तो बादशाह उसे अपने बादशाही में जो है सरफराज करेगा और अपनी बेटी उसके साथ ब्याह देगा और उसके खानदान को इस्राएल में जो है वो आजाद कर देगा। तो उसने कहा कि ये नामखून फलस्ती होता कौन है कि जिंदा खुदा के फौजों की फजीहत करे। ये नामखून फलस्ती होता कौन है कि जिंदा खुदा के फौजों की फजीहत करे। और उसने कहा कि ये नंग जो है आज ही मैं खत्म कर दूंगा। और जब ये बातें सौल तक पहुंची, बादशाह था सौल, जब सौल तक पहुंचा तो उसने दाऊद को कहला भेजा। छोटा सा कलाम है जी, गौर से सुने, बड़ी बाबरकत बात है कि कैसे ये सुनना खुदा की जिंदगी में, खुदा के लोगों की जिंदगी में काम करता है। और जब ये सौल ने सुना तो दाऊद का कहला भेजा। जब दाऊद सौल की बादशाही में दाखिल हुआ तो छोटा सा बच्चा है जी दाऊद, लाल सिर रंग दा, कपड़े तो शान दी, भेड़ा बकरियां दी, बड़ा खूबसूरत है, फतूरा गया है। तो जब उसने कहा बादशाह सलामत, इस नामखून फलस्ती की वजह से किसी का दिल घबराए ना और आशा ना हो, तेरा खादम उसके साथ जाकर जंग करेगा। तो शाऊल ने उससे कहा कि तू कैसे उसके साथ जंग कर सकता है, तू एक छोटा सा बच्चा है और वो अपने बचपन से ही जंगी मर्द है, तो उसका मुकाबला कैसे कर सकता है। तो दाऊद ने क्या कहा, याद रखिए इस बात को। दाऊद ने शाऊल से कहा कि ऐ बादशाह, उस नामखून फलस्ती की वजह से ना घबराओ। जब मैं अपने बाप की भेड़ बकरियां चराता हूँ और कोई शेर या कोई रीछ करके बर्रा उठाकर ले जाता है तो मैं दौड़ता हुआ उसके पीछे जाता हूँ और उस बर्रे को उनके मुंह से छुड़ाकर ले आता हूँ। और जब शेर और रीछ मुझ पर चपटते हैं तो मैं उनकी दाढ़ी से पकड़कर उनका मुंह चीर देता हूँ। मैंने शेर और रीछ को दोनों को मारा है और नामखून फलस्ती भी उनकी मानद एक होगा। हालेलुया। तेरे खादम ने शेर और रीछ को दोनों को जान से मारा है और ये नामखून फलस्ती जिसने आज इस्राएली फौजों की फजीहत की है उनमें से एक होगा। हालेलुया। क्यों दाऊद के अंदर ये गैरत है, इस्राएली मर्द, इस्राएली फौजों का लश्कर है वहां पर, वो फलस्तियों के आगे ऊंची आवाज में बात नहीं करते। जब लश्कर का पहलवान जाति जुड़ी जो है ललकारता है तो सब इस्राएली मर्द वहां से निकल जाते हैं। ये छोटा सा बच्चा 12, 13, 14, 15 साल का या कितने साल का है, वो डट कर खड़ा हो जाता है, इसलिए कि इस्राएल के दूत का नाम उसकी गैरत उसके अंदर है। हालेलुया। इस्राएल के कुदूस के नाम की गैरत दाऊद के अंदर मौजूद है। हालेलुया। और जब शमूएल ने समझा किया तो लिखा कलाम में दाऊद ने तो खुदा का जोर से ना हो सकता। इस्राएल के कुदूस के नाम की गैरत, यीशु मसीह नाम की गैरत दाऊद के अंदर है। इसलिए उसने कहा कि ये नामखून फलस्ती होता कौन है कि जिंदा खुदा के फौजों की फजीहत करे। खुदा के जलाल के लिए तारीफ करें। उसने कहा, शाऊल ने कहा कि जा खुदावंद तेरे, लिखा कलाम में खुदावंद तेरे इसी तरह कि खुदावंद तेरे साथ रहे। फिर दाऊद चला जी उसके लिए, उसके साथ जंग करने के लिए। दाऊद चला उसके साथ जंग करने के लिए और दाऊद ने एक लाठी ली। हालेलुया। एक लाठी ली जब और अपना एक झोला जो चरवाहों का होता है जिसमें राशन पानी और रोटी छोटी रखते हैं, उसमें एक नाले से पांच चिकने पत्थर लिए। 5 चिकने पत्थर, वहां सीमेंट के पत्थर नहीं थे, चिकने उसने बताया। और पांच का फजल को जाहिर करता है। और मैं यहाँ पर बुलंद कहूंगा कि दाऊद ने अपने झोले में खुदा के फजल को रखा, जंग कर लेके जा रहा है। हालेलुया। यीशु नाम की गैरत उसके अंदर है, जंग कर लेके जा रहा है और उसने 5 पत्थर जो है अपने झोले में क्या किए, डाल लिए हैं और चला है फलस्तीन का मुकाबला करने। एक लाठी है, एक गुलेला जिसको कहते हैं गलेला है, लेकिन पंजाबी च सर पंजाबी च गलेला कहते हैं। गलेल ली है उसने
और एक लाठी है और 5 चिकने पत्थर हैं, लेकिन सबसे बढ़कर मैं अभी से कह देता हूँ कि यीशु नाम उसकी जिंदगी है। हालेलुया। यीशु नाम को लेकर वो चला। 5 का फजल को ज़ाहिर करता है, 5 पत्थर उसने उठा लिया। जब उस फलस्ती के सामने वो जाता है और फलस्ती अपनी सफ़ों से निकलकर दाऊद के नज़दीक आता है, दाऊद भी उसके नज़दीक जाता है, तो फलस्ती जो है वो जात का पहलवान जाति जुले जो है दाऊद को देखकर हैरान हुआ। हालेलुया। लिखा कलाम खुदावंद में कि जब उसने दाऊद को देखा तो दाऊद को नाचीज जाना। जी, लिखा कलाम खुदावंद में कि उसने दाऊद को नाचीज जाना और उसने दाऊद से पता क्या कहा जब लाठी उसके हाथ में, क्या मैं कुत्ता हूँ कि तुम मुझसे लड़ने के लिए अपने हाथ में एक लाठी लिए हुए आया? क्या मैं कुत्ता हूँ? जात का पहलवान फलस्ती लश्करों का जो पहलवान था उसने कहा, दाऊद से कहा कि क्या मैं कुत्ता हूँ, तू एक लाठी लेकर मुझसे लड़ने के लिए आया है? हालेलुया। और लिखा है कलाम खुदावंद में कि उसने अपने देवताओं का नाम लेकर दाऊद पर लानत की। वहां पर क्या लिखा जी, गौर से सुने। अपने देवताओं का नाम लेकर दाऊद पर लानत की। दाऊद को जो सर होया है सारे ने वाला पढ़े एक बार मिसाल लेकिन वो टॉप पूछता था, दाऊद पर कुछ असर हुआ? अपने देवताओं का नाम लेकर उसने दाऊद पर लानत की है, दाऊद पर कुछ असर हुआ? हालेलुया। जब अपने देवताओं का नाम लेकर दाऊद पर उसने लानत की है और कहा कि तुम मेरे नजदीक आ, आज मैं तेरा गोश्त हवा के परिंदों को, दरिंदों को और दुनिया को खिलाऊंगा और आज ही तेरा गोश्त हवा में उड़ाऊंगा, तुम मेरे नजदीक आ। हालेलुया। और अपने देवताओं का नाम भी लिया उसने। जब उसने अपने देवताओं का नाम लेकर दाऊद पर लानत की तो दाऊद ने कुछ नहीं पाया, लेकिन उसने कहा कि तुम मेरे नजदीक आ, आज मैं तेरा गोश्त हवाई परिंदों को दूंगा। हालेलुया। दाऊद उसके नजदीक जाता है। क्या कहा दाऊद ने वहां पर? हालेलुया। तू तलवार, भाला, बर्छी और डाल लिए हुए मेरे पास आता है, लेकिन मैं के नाम से जो इस्राएल का दूत है उसके नाम से आज तेरे पास आता हूँ और मेरा खुदावंद आज ही तुझे मेरे हाथ में। हालेलुया। किस नाम से? रब्बुल फाज के नाम से, जो इस्राएल के लश्करों का, जिसके नाम की गैरत मेरे अंदर है, मैं उस नाम से आज तेरे पास आता हूँ। हालेलुया। लिखा कलाम खुदावंद में कि जब दाऊद दौड़ा उसकी तरफ जंग करने के लिए और वो फलस्ती भी अपने हथियार लिए हुए इसकी तरफ दौड़ा, तो दाऊद ने अपने थैले में हाथ डाला और एक पत्थर, हालेलुया, वो एक पत्थर यीशु मसीह नासरी के नाम का उसने जब ले लिया है तो एक ही पत्थर जाति जुलियत के माथे पर यीशु मसीह नासरी का नाम लेकर उसने मारा है। और पौने 10 फीट का जाति जुलियत एक ही पत्थर लगने से मुंह के बल गिरा है और खुदा ने अपने नाम के वसीला से अपने पते दाऊद को फतह बख्शी। हालेलुया। हालेलुया। दाऊद के अंदर थी, एक ही पत्थर मारा है पौने 10 फीट का और ये भूरा सा बच्चा। मुकाबला है, मुकाबला कर सकता है पौने 10 फीट के पहलवान का? कर सकता है? नहीं, नामुमकिन है। लेकिन जिसने मुकाबला किया वो यीशु नाम है। हालेलुया। जिसने अपने बंदा दाऊद को फतह बख्शी वो यीशु नाम है। जिसने अपने बंदा दाऊद को और इतने बड़े लश्कर में इतने बड़े पहलवान पर सरफराज किया वो यीशु नाम है। हालेलुया। हालेलुया। पुराने हथियार में भी खोल कर देख ले, फिगर मैंने बता दी है। 7,736 मरतबा मेरे और आपके यीशु का नाम है। हालेलुया। पूरी कलाम खुदावंद है। यानी इसका मतलब ये है कि खुदा ने अपने बेटे को और लिखा कलाम खुदावंदी में कि उसने अपने हर एक नाम से ज्यादा अजमत अपने कलाम को, वो कलाम कौन है? यीशु मसीह नाम से। हालेलुया। इसलिए 7,736 मरतबा यीशु मसीह नासरी का नाम है और बाप ने अपना नाम जो है 3,358 मरतबा।
हालेलुया। इस नाम की जो गैरत रखते हैं, शागिर्दों ने यीशु मसीह के चले जाने के बाद इस नाम की गैरत को और इस नाम को अपने अंदर रखा। लिखा है कलाम खुदावंद में कि अब तक तुमने मेरे नाम से, आज ये कलाम मेरे और आपके लिए। खुदा ने अपने शागिर्दों के साथ कलाम कर दिया है, लेकिन कलाम के अल्फाज को सीखें, देखें। अब तक यानी मुर्जा कलाम हो रहा है, अब तक तुमने मेरे नाम से कुछ नहीं मांगा, मांगोगे तो पाओगे ताकि तुम्हारी खुशी। परेशान हो, बीमारी की हालत में हो, दुख के आलम में हो, दुनिया की तंगी तकलीफ में हो, बीमारियों ने घेरा है, वो बात चारों तरफ फैली हुई है, मेरा नाम लो। हालेलुया। मेरा नाम तुझे रहाई बख्शेगा। अब तक तुमने मेरे नाम से कुछ नहीं मांगा, कुछ भी, तो ताकि तुम्हारी खुशी, आखिर में लिखा हो ताकि तुम्हारी खुशी पूरी हो जाए। जब तुम परेशान हो तो मेरा नाम लोगे तो मैं तुम्हें बख्श दूंगा, तुम्हारी खुशी क्या होगी जी? पूरी हो जाएगी। हालेलुया। शागिर्दों ने अपनी जिंदगी में यह नाम लिया। आज मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि अब तक तुमने मेरे नाम से कुछ नहीं मांगा, आज से मांगना शुरू कीजिए यीशु मसीह के नाम में। वो आपको शिफा देने वाला है, वो आपके अंदर से जो तरह तरह की बुरी स्पिरिट है, बुरी अरवाह है, वो निकालने वाला है, आपको फतह बख्शने वाला है, आपको सेहत बख्शने वाला है, आपको तंदुरुस्ती देने वाला है, आपके दुखों को दूर करने वाला है। हालेलुया। आज के बाद यीशु नाम को जिस तरह खुदा के शागिर्दों ने अपनी जिंदगी में इस्तेमाल किया, उसी तरह इस्तेमाल करेंगे। एकाकार करेंगे। हालेलुया। वाइडर की तरफ जाऊंगा, जो आज की पहली तिलावत है उसे जरा देखेंगे। फिलिप्पियों के नाम पौलुस रसूल का खात है, उसका दूसरा बाब, उसकी 6वीं आयत। उसने अगरचे खुदा की सूरत में था। कौन सा? तुम्हें बड़ी मर्तबा ये कलाम में यहाँ बयान करता हूँ, मुझे इसको बयान करने में बड़ा मजा आता है। क्या अच्छी तस्वीर यीशु मसीह नासरी की रसूल आज़म ने यहाँ पर बयान की, बड़े अच्छे तरीके। देखें दूसरे खादमों ने भी बयान किया, पतरस ने भी बढ़ चढ़ के बयान किया, लेकिन रसूल आज़म पौलुस रसूल ने जैसा बयान किया मेरे दिल को बड़ा अच्छा लगता है। अपनी अपनी आदत है, अपना अपना रवैया, अपना अपना एटीट्यूड है इंसान का। उसने अगरचे खुदा की सूरत पर था, खुदा के बराबर होने को कब्जा में रखने की चीज ना समझ। देखिए खुदा खुदा बन के भी रह सकता था, लेकिन वो नहीं पड़ी है। हालेलुया। लिखा है आगे अगली आयत में देखेंगे, बल्कि अपने आप को खाली कर दिया, खुदा के होते से हटा लिया थोड़ी देर के लिए, खुदा खाली कर लिया और खादम की सूरत क्या जी? खादम नौकर की सूरत अख्तियार की। अपने शागिर्दों से प्यार नहीं करते। हालेलुया। खिदमत नहीं की थी, थोड़ी गाली तो पहले गाली दी थी, नहीं दी थी। हालेलुया। अपने आप को खाली कर लिया और खादम की सूरत अख्तियार की और इंसानों में मुशाबा हो गया। इंसान बन गया मेरे और आपके लिए, मेरे और आपकी जिंदगी में काम करने के लिए, मेरी और आपकी जिंदगी को सरफराज करने के लिए, मुझे और आपको शिफा देने के लिए वो मेरी और आपकी तरह इंसान बना, मुशाबा हो गया और इंसानी शक्ल में ज़ाहिर होकर अपने आप को पस्त कर दिया और यहाँ तक फर्मा बरदार रहा कि मौत बल्कि सलीबी मौत। इतना फर्मा बरदार अपने बाप का बेटा। आज साढ़ा तो सब काम कर देना सी कहने ज़्यादा बयान नहीं करूँगा, मैं डर के जा रहा हूँ। बल्कि सलीबी मौत अख्तियार की। और लिखा है कलाम खुदावंद में रसूल आज़म पौलुस रसूल, बड़ी अच्छी बात यहाँ पर लिखता है जो हर एक दिल को अच्छी लगती है, लेकिन मुझे ये बात बहुत पसंद है। इसी वास्ते खुदा ने भी उससे बहुत सर बुलंद किया और उसे वो नाम बख्शा जो सब नामों से आला है, ताकि यीशु मसीह नासरी के नाम में हर एक दूसरा झुके, वो आसमानियों का हो, वो जमीनियों का, वो उनका जो जमीन के नीचे है। हालेलुया। रहेगा नाम सदा तिकर मसीदा, रहेगा चातलिक सूरज रहेगा। सिर्फ एक ही नाम, दुनिया की हर एक चीज मिटने वाली है। हालेलुया। दुनिया की हर एक चीज खत्म हो जाएगी, सारे नाम खत्म हो जाएंगे। कलाम खुदावंदी में बहुत से नाम हमें मिलते हैं, काबिल एहतराम है, हम उनका एहतराम करते हैं, उनसे सीखते हैं।
لیکن آج تک کسی نام میں اتنی قدرت نہیں. ہاللیلویا. صرف ایک ہی نام مجھے اور آپ کو بخشا گیا اور جو بخشا گیا خدا نے وہ واپس نہیں لیا. میں نے پہلے بھی ایک بار بیان کیا تھا کہ جو چیز بخش دی جائے وہ واپس نہیں. تو خدا نے ایک ہی نام بخشا ہے میرے اور آپ کے لیے, وہ ہے یسوع نام. اس نام کو اگر شاگردوں کی طرح آپ اپنی زندگی میں لیں گے تو میں نہیں سمجھتا کہ آپ کو کسی چیز کی کوئی کمی آئے گی. ہاللیلویا. آج یسوع نام پورے طور سے جس طرح شاگردوں نے اپنی زندگی میں لیے, آپ بھی لیجیے. شفا پائیے, رہا پائیے, نجات پائیے اور ہر ایک چیز سے بچے رہیں گے. خوشی آپ کے دامن میں جائے. خدا کرے اس کلام کے وسیلہ سے اور نام کے وسیلہ سے آپ کا برکت ہو.